Record. Hello everyone, I welcome you all to today's session. So I request Anirudhji to please take it ahead. Good morning everybody. That was a wonderful and a video from our end. Thank you Sheetal ma'am for playing the same, and I welcome everybody in this wonderful session on GST. So a topic which is of our key importance since last 3 to 4 years. So in last 3 years we are having numerous changes in this GST, and now today again we are meeting with important change in GST which is going to happen from 1st of July. So that is basically on e-invoicing. So all the learners who are available over here, so I welcome you on behalf of Profound Mentors Private Limited. ये जो कंपनी हमारी Profound Mentors Private Limited है, ये सतत प्रयास कर रही है कि आगे हम लोग आप सभी लोगों को एक फैमिली के तौर पे जोड़े और एक प्रोफाउंड भारत फैमिली हम लोगों की बनाए। सो हम सब लोग चाहते हैं कि आप सब इसी तरीके से लर्निंग को ग्रो करते चले, और पिछले कुछ दिनों में देयर आर मेनी सेशंस एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों लोगों ने कुछ न कुछ यहाँ से गेन किया है। तो हम चाहते हैं कि आप इसी तरीके से कनेक्टेड रहिए। profoundmentors.com वेबसाइट है, प्लस बहुत सारी सोशल मीडिया चैनल्स आप लोगों को ऑलरेडी मिल चुकी है। मेनी ऑफ यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऑन गूगल ड्राइव, तो आप लोग गूगल फॉर्म के थ्रू हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। प्लस देयर आर मेनी व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मच ऑफ द टाइम, हमारे बीच में हमारे आज के गेस्ट मौजूद हैं। आई वेलकम विनीता शर्मा जी, डेप्यूटी कमिश्नर GST। सो जैसा टॉपिक है हमारे साथ, वैसे ही हमारे साथ गेस्ट है। आई गेस मैडम ज्वाइन कर चुकी है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैडम से कि आपका वीडियो ऑन कर सकते हैं, ऑडियो ऑन कर सकते हैं। सो
मैडम के बारे में ज्यादा डिटेल तो शीतल मैडम बताएंगी, बट मैं आप लोगों को कुछ बातें स्पीकर्स के बारे में और हमारे गेस्ट के बारे में शॉर्ट में बताना चाहता हूं। सबसे पहले हमारे गेस्ट के बारे में बताना चाहता हूं। अ हम्बल लेडी, अ थॉरो प्रोफेशनल, और साथ में अ पोजीशन होल्डर इन मध्य प्रदेश स्टेट एज अ डेप्यूटी कमिश्नर, पोस्टेड हियर इन द नेटिव प्लेस उज्जैन। तो मैं स्वागत करता हूं विनीता शर्मा मैडम का। और हमारे आज के जो स्पीकर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट निकिता अग्रवाल। आई ऑल्सो वेलकम यू निकिता मैडम, बिकॉज यू नो जीएसटी एक ऐसा टॉपिक है जिसपे जितने वेबिनार्स हम कर पाए उतने ज्यादा अच्छे हैं। कोविड में वैसे बहुत सारे वेबिनार्स हम लोगों ने ऑलरेडी करे हैं। सो निकिता मैम विल बी कंटिन्यूइंग विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक, और आपकी जितनी कॉम्प्लिकेसीज हैं आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं, जो भी लोग इस वेबिनार को ज्वाइन कर रहे हैं इनके लिए ई सर्टिफिकेट प्लस क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के साथ पीपीटी अवेलेबल रहेगा। आप अपना ईमेल चैट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा। So again, I welcome everybody, and thanks to Sheetal Sethi ma'am, who is organizing such a beautiful topic, and she is also a professional. तो मेरे सामने galaxy of professional मौजूद हैं। तो chartered accountant Sheetal Sethi madam, I welcome you, and also Thank you. We are having apart from this, our CEO, who is managing all these events. So Sonali ma'am is also there. Dr. Sonali Mishra, I welcome you also. And Jaya and Mohsin, all the Profound team members, बहुत जबरदस्त काम कर रहे हो. Being an honorary member, मुझे आप लोगों को thank you देना चाहिए. So that is a wonderful learning session. और मैं अब आपको continue करने का बोलता हूँ. I welcome you all. Thank you, Anirudh ji. It was really nice hearing from you, and it's always a pleasure working with you. So it's my pleasure, without taking much of your time, it's my pleasure and honor to introduce our today's chief guest, who is not only a philanthropical lady, but who has also excelled in her leadership skills. She is not only managing her house, but also serving our nation to the best. Okay, she is a spiritually strong lady, and it's my pleasure to introduce her to you. Miss Vinita Jain Sharma ji. She is our very own Deputy Commissioner GST MP. She's done her schooling from CG and is a gold medalist in MSc Chemistry from Ravi Shankar Shukla University, Raipur. She has cleared her UP PSC mains twice. She has got through her MP PSC in her first attempt in 2005. She's worked at Indore before her present post. She is also interested in reading Indian mythology and religion. So here I welcome Miss Vinita Jay Sharma ji. Please, ma'am, we'll like to have few words from you. Thank you, Nikita, and thank you, Anirudh Gupta ji. सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ, इस तरीका का जो आप लोगों ने वेबिनार आयोजित किया है। डेफिनेटली जीएसटी जो एक नया टॉपिक है, एक ही साथ में हम लोगों के लिए एक नया प्लेटफॉर्म है, आप लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी। डेफिनेटली हमारे जो व्यापारी हैं उनके लिए बिल्कुल ही एक नया प्लेटफॉर्म है, उनके वर्किंग स्टाइल को बिल्कुल चेंज कर रहा है, और जो चेंजेस और अपडेट्स आ रहे हैं उसके लिए हमें एक प्लेटफॉर्म पर आना है, और आप जब उसके सहयोग से ही हम जीएसटी को पूरे भारत में अच्छी तरीके से लागू कर पाएंगे। इसके लिए हमारे यहाँ के कुछ हेल्प डेस्क लगाई गई हैं, कुछ हेडक्वार्टर्स में है, कुछ हर सर्कल्स में भी इस संदर्भ में लगाया गया है। और आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जो क्वेरीज होती हैं, जो नए अपडेट्स आते हैं, कुछ आप लोग अपडेट्स होते हैं, कुछ हम अपडेट्स होते हैं, आप लोगों के फेस पे हमें परेशानियां नहीं समझ में आती है, तो डेफिनेटली एक इस तरीके से आप जो वेबिनार आयोजित कर रहे हैं इस कोविड आफ्टर, तो ये हम सबके लिए एक नया फेज होगा, और उम्मीद करती हूँ आगे इस तरीके से आप और अपडेट करते जाएं और हमारे अधिकारी और कर्मचारियों को भी इसमें जोड़ते जाएं। आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए निकिता से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो आपने नया अभी ई इनवॉइस पे आप बोलना चाह रहे हैं, मुझे भी पता चलेगा कि हम लोग इस संदर्भ में जीएसटी काउंसिल पे और क्या चीजें रख सके। आप इस टॉपिक को कंटिन्यू किए, मैं आपकी आज लिसनर हूँ और मैं सुनना चाहूंगी इन चीजों को। थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am, so much.
So here I would like to introduce our very speaker, Nikita Agarwal ji. She is a full-fledged working in GST law from past 4 years, performing in advisory on taxability under indirect taxation, compliance with the requirement of service tax and GST migration, GST impact study and its implementation, GST transition and returns and litigation. She's worked for service tax regime as well. She did her CA, MBA Finance and BBA. She's got a thorough understanding of various industries such as hotel industry, NGO, manufacturing, cooperative society, banking, and FI, construction sector. Currently, she's working as assistant manager at APRA and Associates LLP. She even was a team leader for 20 members during her MBA internship. She wrote 320 poems on divergent topics, out of which some are presented in the magazine named Cityscape, journal Women's Day, special poetry anthology, Women, the Symbol of Power, and other social media channels. She is a speaker on the topic GST, a glimpse on our clients, healthy industry, hotel industry, construction industry, power sector, etc. She is a speaker on GST transitional provision and registration at Income Tax Bar Association, Aligarh. She is a speaker on GST transitional provision at Aligarh branch of ICAI. Her personality development session to class 8 on the topic of time management, winner in elocution contest in 2013, 12 and 10. So here I present our very own speaker, Nikita Agarwal ji. Ma'am, it's all on to you. The stage is all yours. With your permission, Sheetal ma'am, one thing I want to add upon, because there are some media persons also available with us. So can we have, a photograph session for all the learners, so that we can publish it in the social media as well as print media, newspapers. So I request, you please ask the participants to, all those who are comfortable, they can, switch on their video. Yeah, if all the participants, you all are comfortable, can you please switch on your video so you can have a lovely, memorable picture of all of you all together. Thank you so much. That's really sweet of you all. If you have clicked a picture, ma'am, so we can start with it. Thank you, Anirudh. Thank you, Sheetal, for giving me such a wonderful platform for presenting my views and the legal views of on the e-invoicing. Though e-invoicing is very vast picture in a GST, and I think कि e-invoicing का जो implementation है वो थोड़ा late हुआ, जो कि वो पहले होना चाहिए था. That is the main backing for implementation of the GST. दो GST जब इम्प्लीमेंट हुआ था 4 साल पहले, उसके बाद अगर हम आज देखते हैं तो लॉज में काफी सारे चेंजेस आए हैं जो जरूरी है हमारे नॉर्मल और जो हमारा प्रैक्टिकल सिनेरियो है, जो ट्रेड है जिस तरीके से कंट्री में होता है, उसके लिए वो ज्यादा जरूरी है वो चेंजेस आने. इसी वजह से जो है आज हमने एक सेशन रखा है कि जीएसटी में जो ई इनवॉइसिंग है वो काफी सारे फेजेस में इम्प्लीमेंट हुआ, मे बी इन 3 or 4 फेजेस, और दैट स्टिल कंटिन्यूज to other phases also. तो आज हम एक क्विक रिव्यू लेते हैं जीएसटी ई-इनवॉइसिंग पे और समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ दिस ई-इनवॉइसिंग इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड फॉर अ B2C कैटेगरी ऑफ द कस्टमर. So Sheetal, allow me for sharing the screen. You can share your screen. You are a co-host. You can share your screen. So coming to the my presentation on rollover of the e-invoice for business to consumer category. Basically, the e-invoice which has actually been implemented from 1st October 2020, but in previous meetings of GST Council, we have seen that it must be already been implemented from 1st January 2020. First in the trial phase and the other in the voluntary or the mandatory phases. Now coming to why we have taken this topic of the business to consumer category, that is because of the reason on the 1st July,
this category e-invoice is going to be implemented for this category. Now, first we have to see whether this category is actually being required for e-invoicing or not, or what actually the term is e-invoicing means. So we have taken a quick short review of the GST e-invoicing. Basically, the e-invoicing has become a tax reform in the market, to the tax department also, to the government also, and to the business houses also, because it eliminates many of the intricacies, many of the complexities within the internal working of the businesses, and even to the tax department also. The first and the foremost concept of e-invoicing has been put up in 35th GST Council meeting held in the July 2019. Thereon, many of the committees have been formed, group of ministers have been formed, which has laid down the proposal in upcoming GST Council meeting. And finally, in the 31st Council meeting, the standards of the e-invoicing has been implemented. Firstly, the concept of e-invoicing, which has been implemented in the market for the taxpayers, is on 1st January, but that too for the voluntary basis. It means that कि कोई भी taxpayer जो registered taxpayers हैं, अगर वो criteria fulfill करते हैं, जो हम आगे अभी study करते हैं उन criteria को जो fulfill करते हैं, तभी वो जो है voluntary basis पे e-invoicing की facility को कर पाएंगे. Although e-invoicing is not for all the taxpayers, it is for the selective taxpayers, which ultimately fulfills the motive of the tax department. So basically, what actually that e-invoice? हमने ये जाना कि e-invoice का concept GST Council meeting में कब आया था? E-invoicing अब हम now we came to know कि e-invoicing basically actually में है क्या? अगर हम टर्म को मतलब देखते हैं ई इनवॉइस, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस. क्या ये इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस अगर हम कंप्यूटर से बनाते हैं तब माना जाएगा, या फिर किसी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग पॉइंट ऑफ सेल्स हैं, वहां से अगर इनवॉइसिंग जनरेट होती है तो उसको ई इनवॉइस माना जाएगा, या फिर एक सेंट्रलाइज टैक्स पेयर्स ने अपना ही एक सेंट्रलाइज सिस्टम बना दिया है, उसको ही हम ई इनवॉइस मानेंगे. That has been clearly specified in many of the places जो हम आज यहाँ स्टडी कर रहे हैं. बेसिकली व्हाट ई इनवॉइस इज कि एक इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस जो कि गवर्नमेंट पोर्टल, और गवर्नमेंट पोर्टल शायद सही वर्ड नहीं होगा, द करेक्ट वर्ड इज द IRP, इनवॉइस रेफरेंस पोर्टल से अगर हम बनाते हैं, हैविंग ऑल द स्पेसिफिक क्राइटेरियाज, जो कि स्पेसिफिक सारे क्राइटेरियाज जो गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई करे हैं, अगर उस इनवॉइस के ऊपर वो सारे क्राइटेरियाज अगर मेंशन है अलोंग विद द इनवॉइस रेफरेंस नंबर, तो उसको ई इनवॉइस कहा जाएगा. बेसिकली ई इनवॉइस एक ऐसा इनवॉइस क्रिएट होता है जिसमें कि गवर्नमेंट स्पेसिफाइड कुछ डिटेल्स मेंशन होती हैं. उसके जरिए जो है हमारी बिजनेस ऑटोमेशन, हमारी जो कंप्लायंसेस है जीएसटी की, वो इजी आउट हो जाती हैं. दैट इनवॉइस मस्ट बी डिजिटली साइंड and must also have a QR code. QR code is the dynamic quick response code. तो बेसिकली अगर हम देखते हैं ई इनवॉइस कोई इतना ज्यादा पैथेटिक सिचुएशन नहीं आई है, चेंज नहीं, इतना ज्यादा बड़ा चेंज नहीं है जिससे कि कोई भी बिजनेस हाउसेस या फिर जो टैक्स पेयर्स हैं उनको कोई घबराने की बात हो कि एक बहुत बड़ा चेंज होकर आया है. बट अगर हम इसके प्रोविजंस को बहुत अच्छे से अगर स्टडी करते हैं तो इट इज वेरी गुड फॉर इम्प्लीमेंटेशन, और इवन टैक्स पेयर्स को भी साइमल्टेनियसली बहुत फायदा मिलेगा इससे. Now, next, how the tax department, how there is an integration. The e-invoicing, how the integration has been created between the tax department and the taxpayers through the e-invoicing. First important aim for adoption of the e-invoicing is pre-population of GST return. What had happened is the government has specified a URL for generation of the e-invoice. Through that e-invoice URL or GST portal, we create the e-invoice, and then it directly simultaneously being auto-populated in their GSTR1. Once they have filed their GSTR1, the data has already been auto-populated in GSTR3B. जो कि पहले सिनेरियो में जब से ई-इनवॉइस इंप्लीमेंट हुआ है उससे पहले ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी. क्या होता था कि हम ई-वे बिल भी अलग से बना रहे हैं डाटा डाल के, हम GSTR1 भी अलग से बना रहे हैं, GSTR3B के लिए डाटा अलग से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो चांस ऑफ एरर हैज आल्सो बीन इंक्रीज्ड.
नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग द रिकंसिलिएशन प्रॉब्लम। जीएसटी जब नया नया आया था तो ये मार्केट में, ये बिजनेस हाउसेज में और टैक्स पेयर्स के बीच में ये बहुत ज्यादा मिथ था कि हमें इसमें काफी सारे रिकंसिलिएशंस बनाने पड़ेंगे। जब डाटा एक जगह से दूसरी जगह पे ऑटो पॉपुलेटेड साइमल्टेनियसली होता चला जा रहा है, तो यहाँ पे रिकंसिलिएशन के जो बनाने के जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, जो इन्वॉल्वमेंट है, वो कम हो जाती है। Next is the real-time availability of data. That is the most important and integrated method that creates an integration between the tax department and the taxpayer. अगर आज being as a taxpayer मैंने आज कोई invoice generate किया है, तो वो simultaneously through the e-invoicing portal, तो वो simultaneously tax department तक inform अपने आप हो जाएगा। इससे क्या होगा कि जो टैक्स डिपार्टमेंट है वो एक इनवॉइस की ऑथेंटिसिटी को, इनवॉइस की करेक्टनेस को और वैलिडिटी को प्रॉपर्ली चेक कर सकता है और देख सकता है कि क्या एक्चुअली में जिस डाटा के बेसिस पे आपने इनवॉइस क्रिएट किया है, एक्चुअली में वो रेसिपिएंट के पास जो पहुंच रहा है फॉर द अवेलमेंट ऑफ आईटीसी, क्या वो सही तरीके से पहुंच रहा है, अदर कंडीशंस सच एज सप्लाई, एक्चुअल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज हो रही है या नहीं हो रही। बिकॉज ई इनवॉइस आने का जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट आइडिया लाया गया, दैट इज बिकॉज ऑफ द फेक इनवॉइसेस और फेक अवेलमेंट ऑफ आईटीसी। जो मार्केट में हंड्रेड्स ऑफ टैक्स पेयर्स को अरेस्ट किया गया है, दे आर ऑन द प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स ड्यू टू द फेक इनवॉइसेस और फेक आईटीसी। उसी की वजह से ई इनवॉइस का जो एक नींव जो रखी गई है, जो बीज बोया गया है, वो इस फेक इनवॉइसेस की वजह से रखा गया है। उसको एलिमिनेट करने के लिए ये वन ऑफ द बेसिक एम और बेनिफिट है कि हम रियल टाइम अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा टैक्स पेयर का जो है टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुंचता है। जो मैंने जैसे अभी कहा, अगर क्या कहते हैं रियल टाइम अवेलेबिलिटी से अगर डाटा जो है टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुंच रहा है, तो द चांसेस ऑफ अवेलिंग द फेक आईटीसी आल्सो गॉट रिड्यूस्ड, बिकॉज डिपार्टमेंट कैन एबल टू नो कि what actually amount of the ITC is being generated for the recipient. Next, immediate reflection of ITC to recipient. अगर हम फर्स्ट टाइम की बात करें, जो ऑटो पॉपुलेशन ऑफ रिटर्न था, तो उसका चैनल जो होता था वो ये था कि जैसे ही हम ई इनवॉइस क्रिएट करते हैं, उसके बाद हमारे वो जीएसटीआर 1 में ऑटो पॉपुलेटेड हो जाता है डाटा, हमारे जीएसटीआर 3 भी में ऑटो पॉपुलेटेड हो जाता है। बट जैसे ही हमारा जीएसटीआर 1 में डाटा ऑटो पॉपुलेटेड होगा, वैसे ही जो है साइमल्टेनियसली रिसिपिएंट के जीएसटीआर 2A में और जीएसटीआर 2B में साइमल्टेनियसली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आईटी इनवॉइसेस का 2A और 2B में रिफ्लेक्शन होने का मतलब ये है कि रेसिपिएंट जो है अपना आईटीसी इमीडिएट अवेल कर सकता है। उसको ये वेट करने की जरूरत नहीं है कि मेरा आईटीसी आएगा, मेरा आईटीसी नहीं आएगा, मेरा कब आएगा आईटीसी, ये देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। And the most important thing, this e-invoicing is giving a promotion to the digitalization, on which basis today's session is almost stands for. Basically what had happened is कि fake invoices और fake ITC तो एक बेस है ही invoice का। सेकेंड बेस हमारा जो ई इनवॉइसेस को लाने का है वो है डिजिटलाइजेशन का। आजकल हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी कितनी फास्ट मूविंग होती जा रही है। इवन जब जीएसटी लॉन्च हुआ था ऑन 1 जुलाई 2017 में, तब भी हमने इतना नहीं सोचा था कि डिजिटलाइजेशन इतनी तेजी से हम टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होंगे, तो हमारे लॉज को भी उसी हिसाब से उतने ही डिजिटलाइजेशन मैनर में बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम हमारे लॉज जो है, हमारे टैक्सेशन लॉज, इवन द अदर कंपनी लॉज, इवन द अदर लॉज ऑल्सो, अगर वो मार्केट सिनेरियो के हिसाब से, बिजनेस हाउसेस की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अगर नहीं चलेंगे, तो वो लॉज जो इम्प्लीमेंटेड भी प्रॉपर्ली नहीं हो पाएंगे। इसलिए ई-इनवॉइस फॉर स्पेसिफिकली फॉर द B2C कैटेगरी भी लाया गया, जिससे कि जो है डिजिटलाइजेशन को प्रमोशन मिले, डिजिटलाइजेशन आगे बढ़े। So in this study, in this whole session or in this whole study, what legal aspect we have touched for? Although मैंने हर एक पॉइंट पे मैं आपको बताती जाऊंगी कि हम कौन सी नोटिफिकेशन या कौन से सर्कुलर या रूल्स को रेफर कर रहे हैं, बट स्टिल वी मस्ट एम टू नो कि हमने कितने रूल्स, कितने नोटिफिकेशंस को कवर अप किया है। So we are going to cover up the notification number 13/20, then 14/20, which is the specific notification for the effectiveness of e-invoicing for B2C category.
Then the notification number 89/20 and notification number 6/21. These are the two specific notifications which gives the exemption for the levy of the penalty in the initial days of non-compliance of issuing the e-invoice in B2C category. The rule 46 gives out the certain points which is to be mentioned, which is required to be mentioned on your invoice, and sub rule 4 gives the power to the government to amend the provisions related to the invoices and gives some mandatory requirements for having the QR code on the invoice. Then the circular number 146 and circular number 156. So all these compliances we are going to study right now for having an implementation of e-invoice for B2C category. B2C category के आने से पहले let's have a quick understanding, let's have a brief understanding of what type of invoices are being given in a GST law. Basically, GST law में chapter number 7 has specified the list of the invoices which is required to be implemented or which is required to be compliant by a taxpayer. The invoice number 1 is a tax invoice which is to be issued for the supply of goods and services. Second is the export invoice, which is to be issued at the time of making the export after filling up all the conditions that is given in the export of goods and export of services. Third, invoice to the SEZ unit. Such type of invoices is being issued when we are going to supply the goods and services to the SEZ unit, and there is specific credit notes and debit notes. Then fourth is the B2C invoice. Basically, B2C invoice, export invoice or SEZ or B2B invoice are the subcategories of the tax invoices. B2C invoices, we can say it is for the when a registered person is issuing an invoice to an unregistered person. Next is of the bill of supply. Bill of supply is basically issued when a registered person is issuing invoices for an exempted goods and services. तो बेसिकली बिल ऑफ सप्लाई के लिए दो गवर्नमेंट ने कैटेगराइजेशन कंटेंट स्पेसिफाई करे हुए, बट दैट इज नॉट एन मैंडेटरी वन बिकॉज वो एक एग्जाम्प्टेड गुड्स और सप्लाईज के लिए है. नेक्स्ट इज ऑफ द रिसीट वाउचर्स. हम रिसीट वाउचर्स को तब इशू करते हैं जब हम एडवांस रिसीव करते हैं. लेट्स से कि अगर आई एम अ टैक्स पेयर, आई एम अ रजिस्टर्ड पर्सन, if I'm receiving an advance of rupees 10,000, then I have to issue a receipt voucher. That receipt voucher must specify all the contents which is given in the rule. Next is of the payment voucher. Basically the payment voucher की जो requirement आती है वो तब आती है जब हम कोई भी इनवर्ट सप्लाई लेते हैं और उसके इनवर्ट सप्लाई जो कि रिवर्स चार्ज जिन पे लगता है और उसके अगेंस्ट में हमें ये वाउचर इशू करना होता है. अब जैसा कि टैक्स इनवॉइसेस के भी सब कैटेगरीज, 4 टाइप्स ऑफ सब कैटेगरीज हैं, B2B, एक्सपोर्ट, SEZ एंड द B2C इनवॉइस. तो इनकी एप्लीकेबिलिटी ई इनवॉइसिंग के अंदर किस तरीके से है? फ्रॉम 1 अक्टूबर, बेसिकली अगर हम देखें तो 1 जनवरी 2020 से एक वॉलंटरी बेसिस पे ई इनवॉइसिंग स्टार्ट हो गया था, बट ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिचेस, ड्यू टू ऑफ द मार्केट सिनेरियोज, ड्यू टू ऑफ द कोविड सिनेरियोज आल्सो, इट हैज बीन डिलेड and finally it has been first implemented from 1st October 2020 for B2B, export and the supplies to the SEZ unit. और ये सिर्फ 1 अक्टूबर 2020 को उन टैक्स पेयर्स के लिए हुआ था जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर 500 करोड़ से अबव है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली द एग्रीगेट टर्नओवर इज. बेसिकली अगर मैं बहुत सिंपल शब्दों में अगर इसको समझाऊं कि एग्रीगेट टर्नओवर क्या होती है specifically for e-invoice, I'm not saying about whole GST law because GST law में अपनी अपनी requirements के हिसाब से aggregate turnover की भी definition change हुई है. But अगर मैं e-invoicing specific अगर बात करूं और हम simple शब्दों में अगर बात करें तो aggregate turnover का मतलब हो गया जो आपकी बैलेंस शीट में revenue आ रहा है, revenue from operation आ रहा है. तो अगर हम सिंपल टर्म्स में बात करते हैं तो, बट अगर हम लॉ के टर्म्स में बात करते हैं तो एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या होता है? इट इज अ सम ऑफ अ टैक्सेबल सप्लाई, इट इज अ टैक्सेबल सप्लाई विद एग्जम्प्टेड सप्लाई, विद जीरो रेटेड सप्लाई, और वी कैन से इट एक्सपोर्ट सप्लाई और सप्लाई टू SEZ.
but does not include the tax item. So basically it is a sum of all types of outward supply. तो अगर हमारी ये एग्रीगेट टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है तो हमारा B2B ई इनवॉइस जो है 1 अक्टूबर से इम्प्लीमेंट ऑलरेडी हो चुका है। अगर हमारी टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा है, यानी कि जिनकी टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा है और 500 करोड़ से कम की है, उनको उनके ऊपर ई इनवॉइसिंग की जो फैसिलिटी है वो 1 जनवरी 2021 से इम्प्लीमेंटेड ऑलरेडी हो चुकी है। नाउ नेक्स्ट इन द थर्ड फेज, अगर हमारी एग्रीगेट टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 99.99 करोड़ से अगर कम है तो उनके ऊपर ई इनवॉइसिंग की जो फैसिलिटी है वो 1 अप्रैल 2021 से ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड हो चुकी है। इवन अगर हम देखें, इट हैज ऑलरेडी बीन मोर देन 6 मंथ्स की जो B2C एक्सपोर्ट और एससी से रिलेटेड इनवॉइसेस हैं उनके लिए ये सारे इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है। कमिंग टू द B2C कैटेगरी, अगर B2C कैटेगरी में भी वही हुआ कि गवर्नमेंट ने 1 दिसंबर से अप्लाई तो किया, but due to some technical glitches, due to some any of the reasons which is not able to adopt, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि उसको 1 दिसंबर 2020 से इम्प्लीमेंट तो किया, लेकिन साथ ही में एक नोटिफिकेशन भी डाली, नोटिफिकेशन नंबर 89/2020 एंड 06/2021, जिसमें ये स्पेसिफाई किया गया कि अगर आप 1 दिसंबर 2020 से अगर 30 जून 2021 तक ई इनवॉइस फॉर B2C कैटेगरी इशू नहीं भी करते हैं तो भी आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी। मतलब क्या हुआ, ये आपके ऊपर वॉलेंट्री कर दिया कि आपके ऊपर है, आप इस पीरियड में करना चाहो तो आप कर सकते हो, बट ओनली फॉर दोज टैक्सपेयर्स व्हिच इज हैविंग एन टर्नओवर एग्रीगेट एक्सीडिंग टू 500 करोड़। बट इट हैज ऑलरेडी बीन मैंडेटरी कि आपको 1 जुलाई 2021 से आपको B2C कैटेगरी के ई इनवॉइस को क्रिएट करना है। अच्छा, अगर हम देखें फॉर B2B एक्सपोर्ट और एससी इनवॉइसेस के रिस्पेक्टिव में, तो हम ये पैटर्न नोट कर रहे हैं कि पहले 500 करोड़ से ज्यादा के टर्नओवर वालों के लिए बोला, फिर 100 करोड़ के लिए बोला, फिर 50 करोड़ के लिए बोला, यानी कि जो लिमिट है वो रिड्यूस करते जा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि ई इनवॉइसिंग एक ऐसी फैसिलिटी है जो टैक्सपेयर्स के बीच में जो बिजनेस की कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उनको कम करती है, और इवन गवर्नमेंट को भी उससे फायदा मिल रहा है, जो कि उनको रियल टाइम डाटा मिल रहा है, डिजिटलाइजेशन प्रमोट हो रही है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट कम होती जा रही है, 50 करोड़ आया है, एंड इवन वी आर एक्सपेक्टिंग कि हो सकता है शायद ये 50 करोड़ से भी कम कर दें। उसी तरह से B2C कैटेगरी के लिए अभी इनिशियल लेवल पे 500 करोड़ की लिमिट लेकर आए हैं, एंड इट इज मोस्ट प्रोबेबली कि वो कम करके जो है मे बी अप टू 50 करोड़ और मे बी लेस देन दैट कर दें। तो उसके लिए हमें क्या होगा, वी हैव टू प्रिपेयर इट एज अ अर्ली कि क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज हम इस ड्यूरेशन में फेस कर सकते हैं, इस ड्यूरेशन में कवर हो सकती हैं फॉर रेजिंग अ B2C इनवॉइस। क्योंकि आई थिंक सो कि जो B2B एक्सपोर्ट और एसईजेड इनवॉइसेज हैं उसके लिए कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत कम हो गई हैं इशू करने में, और जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं we will discuss in this session. Now what actually on what criteria, हमने जो अभी अपनी इस स्लाइड में पढ़ा वो हमने एक बहुत छोटा सा टर्म पढ़ा कि सिर्फ उन लोगों को B2C कैटेगरी के ई इनवॉइस करने की जरूरत है जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर 500 करोड़ है। बट क्या ये एग्रीगेट टर्नओवर जिनकी 500 करोड़ से ज्यादा की है वो सभी लोग आते हैं? और अगर सभी लोग नहीं आते हैं तो वो कौन से लोग हैं जो नहीं आते हैं? तो लेट्स अंडरस्टैंड all the eligibility criteria. Basically for B2C invoices, the eligibility criteria is in a combination. Criteria number 1 is on the basis of the turnover basis, and criteria number 2 is on the basis of business activity. If we talk about the criteria 1 that is on the turnover basis, तो हम ये देखते हैं कि जिनकी aggregate turnover 500 करोड़ से ज्यादा की है उनको लिया जाएगा। बट ये 500 करोड़ ये नहीं है कि हम प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का लेंगे, ये 500 करोड़ किसी भी साल में अगर हो, लेट्स से अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 17-18 में 500 आपका 550 करोड़ की टर्नओवर अगर होती है और उसके बाद के ईयर्स में आपकी 500 करोड़ से कम की रह जाती है, तो भी आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग की ये फैसिलिटी एप्लीकेबल है।
नाउ इफ वी टॉक अबाउट कि अगर आपके लेट्स से 17-18 में आपकी 400 करोड़ की ही टर्नओवर रह जाती है, देन यू आर ग्रोइंग अप योर बिजनेस in 18-19 to a 550 crores, 19-20 up to 700 crores, and thereafter फिर आपकी रिड्यूस होने लगती है जस्ट ड्यू टू द कोविड। तो भी आपको ई इनवॉइसिंग की इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए ई इनवॉइसेस इशू करने हैं, बिकॉज 17-18 जब से जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ है तब से लेके आज तक की डेट में अगर आपके किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 500 करोड़ से ज्यादा की अगर टर्नओवर है तो आपके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी बेसिस। बिजनेस एक्टिविटी बेसिस का मतलब ये हुआ कि कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट्स को, कुछ पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ इंडस्ट्रीज को इसको एग्जम्प्ट किया गया है कि आपको ई इनवॉइस फॉर B2C कैटेगरी नहीं इशू करने हैं। What are those exemptions? Basically, these are all business activities which has clearly been specified under Rule 54, Sub-Rule 2, Sub-Rule 3, Sub-Rule 4 and 4A. These are the exemptions to the insurance company. कोई भी अगर insurance company अगर है, maybe it is of a life insurance company, maybe it is of a general insurance company, maybe it is of a marine insurance company, any of the insurance company are exempt to issue the e-invoice for B2C category. Banking company, financial institutions including the NBFCs, GTA, goods transport agency supplying the service in relation to the transportation of the goods by road in a goods carriage. वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे कंसाइनमेंट नोट इशू होता है। थर्ड, सप्लाइंग पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, मतलब अगर कोई भी जैसे स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन होता है जो पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करने में सर्विसेज देती है, तो उनको ये वाले ई इनवॉइस का जो कंप्लायंसेस है वो करने की जरूरत नहीं है। फोर्थ इज ऑफ सप्लाइंग द सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू द एग्जीबिशन ऑफ सिनेमाटोग्राफ इन फिल्म एंड मल्टीप्लेक्स स्क्रीन। हमने देखा होगा, हम लेट्स से अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि जैसा पीवीआर होता है, आइनॉक्स होता है, वहां पे जनरली जो सप्लाई ऑफ सर्विसेज होती है वो मोस्टली, मैं कहूंगी कि मोस्टली 90% टू 95% जो सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है इज ऑफ B2C कैटेगरी। हम नॉर्मल काउंटर पे जाते हैं तो टिकट ले लेते हैं, हम ऑनलाइन टिकट बुक कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द इनकम जो जनरेट होती है दैट इज ऑफ द B2C कैटेगरी, और इट इज नॉट पॉसिबल कि हम हर एक इनवॉइस के ऊपर B2C की जो गवर्नमेंट ने कंटेंट स्पेसिफाई करे हैं वो करना, मेंशन करना जरूरी हो पाए। इसी वजह से जो है इस कैटेगरी को जो वो सारे टैक्स पेयर्स जो कि इस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनको एग्जाम किया गया। एंड द फिफ्थ वन इज द OIDR सर्विसेज supplied by the any registered person to an unregistered person. What basically this type of service is, OIDR means online information and data, online information and database access or retrieval service. Basically what it happens, जब हम कोई इंटरनेट ऑनलाइन थ्रू इंटरनेट या ऑनलाइन के थ्रू जो है कोई भी हम डाटा को डाउनलोड करते हैं या कोई भी हम सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं या कोई भी डिजिटल कंटेंट हम लेते हैं, अगर हम वो किसी रजिस्टर्ड पर्सन से लें, हम का मतलब मैं एज अ इंडिविजुअल, अगर हम कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन किसी भी एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन से ये चीजें खरीदता है, लेता है, तो उस केस में उस रजिस्टर्ड पर्सन को जो है इस तरीके की सर्विसेज के ऊपर B2C कैटेगरी के रिलेटिव में जो इनवॉइस की कंप्लायंसेस है उसको पूरी करने की जरूरत नहीं है। तो हमने एट प्रेजेंट हम ये देख रहे हैं कि 500 करोड़ से ज्यादा के टर्नओवर, बट उनमें से भी ये 5 कैटेगरीज को एग्जाम किया गया है। मीन जिस तरीके से हमने पैटर्न देखा है, जो गवर्नमेंट का अल्टीमेट मोटिव है इसको लाने का, हम ये इजीली नोटिस कर सकते हैं कि गवर्नमेंट 500 करोड़ को एग्रीगेट टर्नओवर को जरूर लिमिट कम करते हुए मे बी अप टू 50 करोड़ लेकर आएगी, एंड मे बी लेसर देन दैट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वुड अराइज कि मे बी हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको जो है ये चीज क्वेश्चन अराइज हुआ हो कि एक्सपोर्ट इनवॉइस के टाइम पे भी तो जो पर्सन जिसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट के केस में जो हमारा रेसिपिएंट होता है वो इंडिया के बाहर बैठा होता है। जब वो इंडिया के बाहर है तो ऑब्वियसली वो अनरजिस्टर्ड है, और हम इंडिया में हैं तो हम जो है रजिस्टर्ड हैं, तो क्या वो हमारा B2C कैटेगरी में कवर होगा? द आंसर इज अ बिग नो। वो उसका रीजन ये है कि उसके इसमें रेसिपिएंट इंडिया के बाहर जरूर है, बट हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई भी इंडिया के बाहर है,
और दैट इज अ सेपरेट कैटेगरी फॉर द एक्सपोर्ट इनवॉइसेस, जो कि गवर्नमेंट ने सेपरेट कैटेगरी इसलिए दे रखी है जिससे कि इंडिया में ज्यादा से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज आए और एक्सपोर्ट का प्रमोशन हो। इसलिए B2C के एक्सपोर्ट इनवॉइसेस को B2C नहीं माना जाएगा। Now we have taken a view कि B2C इनवॉइसेस में एक QR फैसिलिटी को मैंडेटरी करा गया है। मतलब आपको, अगर आप देखते हो B2C का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक रजिस्टर्ड पर्सन या कोई भी एक, अगर हम GST लॉ के हिसाब से समझने की कोशिश करें तो कोई भी एक रजिस्टर्ड पर्सन जो है एक अनरजिस्टर्ड को सप्लाई करता है गुड्स और सर्विसेज की, और उसी के रिस्पेक्टिव में जो है इनवॉइस देता है। अब रजिस्टर्ड पर्सन अगर जब सप्लाई कर रहा है तो गवर्नमेंट के पास सिर्फ जो डिटेल्स है उस रजिस्टर्ड पर्सन की है, मगर उस कस्टमर की कोई डिटेल नहीं होगी कि वो किसको गया। इसीलिए एक कॉन्सेप्ट लेकर आए साथ में QR कोड, डायनामिक QR कोड। बेसिकली व्हाट इट इज कोड इज, it's a kind of a pattern of all those contents which government has made mandatory, and this pattern is somewhat in a form of an image which is able to scan, and you as a taxpayer, you as a consumer, you as a tax department is able to know all the details of that supplier and the recipient as well. तो QR कोड जो बेसिकली हमने नॉर्मली सिनेरियोज में देखा भी होगा, हम किसी नॉर्मल शॉप पे भी जाते हैं आजकल, तो इवन इंडस्ट्रीज हैज आल्सो टेकन कि वो अपने प्रेमाइसेस में QR कोड स्पेसिफाई कर देती है कि आप यहाँ से स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो, आप डिटेल्स कैप्चर कर सकते हो। तो वी हैव सीन कि दिस टाइप ऑफ QR कोड इज बीइंग जनरली मेंशन्ड। तो इस पूरे B2C के इनवॉइस में जो एक महत्वपूर्ण जगह जो है वो इस QR कोड ने ले रखी है। अगर हम B2B के इनवॉइसेस में देखें तो वहां पे जो है एक इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट होता है, वहां पे एक QR कोड जनरेट होता है, वहां पे गवर्नमेंट ने एक स्पेसिफिक पोर्टल दे रखा है। इसलिए जो है वहां पे काफी सारी चीजें हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे GST रजिस्ट्रेशन नंबर सामने रेसिपिएंट का भी अवेलेबल है। बट चूंकि यहाँ पे जो है B2C के केस में रेसिपिएंट का अनरजिस्टर्ड है, तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस जो है QR कोड ने ले रखी है। तो अब इस QR कोड को हम कैसे बनाएंगे और इसमें क्या क्या चीजें होंगी। बेसिकली इस QR कोड के अंदर गवर्नमेंट ने कुछ 6 स्पेसिफिक चीजें स्पेसिफाई करी हैं कि आपको ये 6 चीजें इस QR कोड में होनी जरूरी है। अगर इनमें से कोई भी एक चीज, कोई भी एक इंग्रेडिएंट अगर नहीं होता है तो दैट इज नॉट अ वैलिड QR कोड। द फर्स्ट वन इज द सप्लायर्स GSTI number, second is the supplier's UPI ID which is specifically linked from their bank account, and the third is the pay's bank account number and IFSC code. Fourth is the invoice number and invoice date. Fifth is the total invoice value. Sixth is the GST amount, specifically having the CGST, SGST, IGST and cess amounts breakup. Basically, what the purpose of this dynamic QR code is to enable the recipient or customer to scan and pay the amount to be paid to the merchant supplier in respect of the said supplies. कहने का मतलब ये हुआ कि ये QR कोड इस तरीके से होना चाहिए कि अगर मैं जैसे ही इसको स्कैन करूं तो मैं इस स्कैनिंग के बाद इसमें पे कर सकूं, अपने सप्लायर को जो पेमेंट कर सकूं और मुझे उस इनवॉइस की कंप्लीट डिटेल निकल कर आ जाए। अगर इनमें से कोई भी चीज, या तो मैं पे नहीं कर पा रही हूँ या फिर मुझे उस इनवॉइस की कंप्लीट डिटेल अगर नहीं मिल पा रही है, तो वो एक वैलिड QR कोड नहीं माना जाएगा। नाउ अब हमने ये जाना कि डायनामिक QR कोड क्या होते हैं, क्या है। बेसिकली ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो अगर हम जैसे देखते हैं कि ई इनवॉइसिंग का मतलब जो है एक इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस हो गया, तो क्या एक्चुअली में जो B2C का जो इनवॉइस जनरेट हो रहा है, क्या वो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस है? क्योंकि जब हमने ई इनवॉइस की स्टार्टिंग में डेफिनेशन हम स्टडी करते हैं तो वहां ये लिखा हुआ है कि सिर्फ एक कंप्यूटर से जनरेट करा हुआ इनवॉइस ई इनवॉइस नहीं माना जाएगा। ई इनवॉइस एक गवर्नमेंट पोर्टल से अगर जनरेट हो रहा है तो भी वो एक ई इनवॉइस नहीं माना जाएगा। तो वी हैव ऑलरेडी टेकन अ स्टडी कि ई इनवॉइसिंग का मतलब ये हो गया कि अगर मैं लॉ के पर्सपेक्टिव से, GST लॉ के पर्सपेक्टिव से अगर देखती हूँ तो ई इनवॉइस का मतलब हुआ कि भाई ऐसा इनवॉइस जो कि लॉ स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स को रखता हो, डिजिटलाइजेशन
को आगे बढ़ाने में सपोर्ट कर रहा हो, रेफरेंस दे रहा हो बाय वे ऑफ एनी ऑफ द थिंग। B2B के केस में देखते हैं तो एक इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट होता है, बट अगर हम B2C के केस में देखते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक QR कोड है। दैट QR कोड कैन ओनली बी एबल टू अ वैलिड वन जब हम जो है उसके अंदर अपनी पेमेंट डिटेल्स और इनवॉइस की डिटेल डालते हैं। तो अगर हम एक कॉम्प्लेक्सिटी या इजीनेस की बात करते हैं, दीज टू टाइप ऑफ इनवॉइसेज, इनवॉइस ऑफ B2B और B2C, तो हमें क्या क्या चीजों की अगर हम देखें तो क्या क्या चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी। मतलब ये है कि आज हम अगर करने बैठे हैं 1 जुलाई से जैसे B2C इनवॉइस इंप्लीमेंट हो रहा है विदाउट पेनल्टी वाला, तो अगर हम आज ये देखते हैं कि भाई हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो वी कैन हैव अ कंपैरिजन ऑफ दीज टू कैटेगरी ऑफ इनवॉइसेस कि हमें कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी पहले वालों में, पहले जो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड हो चुके हैं उसमें है, या फिर कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी B2C के में आएगी। अगर हम फर्स्ट कैटेगरी की बात करें फॉर B2B एक्सपोर्ट SEZ इनवॉइस एंड इट्स क्रेडिट नोट और डेबिट नोट, उस केस में हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ी थी। इंटरनेट होना जरूरी है, तभी तो हम गवर्नमेंट पोर्टल से कनेक्ट कर पाएंगे। जो रूल 46 के अंदर 16 कंटेंट स्पेसिफाइड है वो हमारे पास फील्ड्स अवेलेबल होना चाहिए। रिसिपिएंट की डिटेल हमारे पास प्रॉपर्ली होनी चाहिए, या फिर कह लो रिसिपिएंट का एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हमारे पास होना चाहिए। मैं स्पेसिफिकली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की यहाँ क्यों बात कर रही हूँ, उसका रीजन है, उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब हम ये देखते हैं, जब हम गवर्नमेंट पोर्टल से इंटीग्रेट कराते हैं अपने इनवॉइस को, तो वहां पे रेसिपिएंट की कंप्लीट एड्रेस डिटेल, पिन कोड, स्टेट नेम सब पूछता है। बट अगर यही पिन कोड, लेट्स से अगर यही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में रेसिपिएंट ने 110001 डाल रखा है ऐसा पिन कोड, और आपने अपना इनवॉइस जनरेट करते में 110002 डाल दिया है, तो भी वहां पे वो इनवॉइस जनरेट नहीं करता। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि हमारे पास एक डाटाबेस क्रिएटेड होना चाहिए हमारे रेसिपिएंट्स का, स्पेशली हम उनसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ओपन करके तब हम उसको डाटाबेस से बनाएं, जिससे कि हम टाइमली अपना टास्क अकम्प्लिश कर सकें और इसको प्रॉपर्ली वैलिडेट भी कर सकें। नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड एक्सेल ऑफलाइन यूटिलिटी, जिसके बेसिस पे जो है हम एक जेसन फाइल अपनी क्रिएट कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द लॉगिन क्रेडेंशियल्स ऑन द GST e-invoice portal और invoice reference portal. Now coming to the second category, that is of the B2C invoice. अगर हम B2C invoice को के सारे हम डिटेल्स को अगर देखें कि हमें क्या क्या जरूरत है, it's very simple of the three things. That is all the fields that is required in the rule 46 में जो सारे fields स्पेसिफाई करें वो तो हमारे पास होने ही चाहिए। सेकेंड, सप्लायर्स बैंक डिटेल, क्योंकि रूल 46 में जो सारी डिटेल्स दे रखी हैं वही सारे स्पेसिफिकली उनमें से कुछ स्पेसिफिक कंटेंट्स को उठाकर ही डायनामिक QR कोड के लिए बनाए हैं। नेक्स्ट इज ऑफ द सप्लायर्स बैंक डिटेल, सप्लायर की बैंक की डिटेल होनी चाहिए, UPI ID प्रॉपर्ली लिंक होना चाहिए बैंक अकाउंट से, और IFSCI कोड होना चाहिए। एंड द मोस्ट थर्ड वन इज द वेरिफिकेशन ऐप। बेसिकली व्हाट एक्चुअली इज द वेरिफिकेशन ऐप? I'm just going to give up a demo कि what basically is the verification app. Basically, verification app is actually an app which is provided by the government. Verification app is basically an app which is provided by the government so that you can able to verify your QR code. अब हम ये ऐप निकालते कहाँ से हैं ये मैं आपको स्पेसिफाई कर देती हूँ। Can you able to see a screen which is showing the e-invoice portal of GST? Not yet, Nikita ji. Just a minute. You'll have to stop sharing this and share your this thing screen. I hope all my participants is now able to Yes. see the screen of the GST e-invoicing system. Yes, yes, yes. देखते हैं, अगर हम इस पोर्टल को में देखते हैं तो यहाँ पे ये सारे जो टैब्स हैं, इसमें वन ऑफ द टैब इज ऑफ द हेल्प which is having an option of the tool. जनरली हम जो e-invoice जनरेट करते हैं अपने बल्क रजिस्ट्रेशन टूल जो मैं ऑफलाइन यूटिलिटी बताई थी,
वो हम ऑफलाइन यूटिलिटी यहाँ से डाउनलोड करते हैं। एंड व्हाट अभी हम जो अपने वेरिफिकेशन ऐप की बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट हैव दिस फैसिलिटी ऑफ वेरीफाई QR कोड ऐप। When we click on this, we have to put our mobile number and OTP. Once we put it, the government will send you a link through a message to you this number, and from that link you can be able to download that verification app. This verification app is clearly gives you an image of what actually the QR code is having the detail. तो दिस वेरिफिकेशन है बेसिकली गवर्नमेंट इज प्रोवाइडेड कि कभी आप किसी भी सप्लायर के पास जाएं और आपको इनवॉइस तो दे दिया, उस पर QR कोड भी डाल के दे दिया, बट पता चला कि उस QR कोड में तो कोई डिटेल है ही नहीं, वो सिर्फ एक अजीब सी एक इमेज बना रहा है। तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हो कि क्या एक्चुअली में सप्लायर ने अपनी डिटेल्स इसमें सही दी है, क्या एक्चुअली वो प्रॉपरली गवर्नमेंट के लॉज को कंप्लाई कर रहा है। क्योंकि अगर सप्लायर टैक्स गवर्नमेंट को अगर पे नहीं, हमसे कलेक्ट करने के बाद अगर वो पे नहीं करता है, तो ऑब्वियसली वो अपने QR कोड में इस चीज को मेंशन नहीं करेगा। तो वी कैन अवेल दिस फैसिलिटी फ्रॉम दैट ऐप ऑल्सो। Now, coming after having a brief understanding or a basic understanding of what actually the B2C e-invoice is, now actually this B2C e-invoice without the penalty is going to be implemented from the 1st July 2021, or we can say it after 4 days. तो क्या दिक्कतें आ सकती हैं, या फिर ये कह लो कि कुछ ऐसे टैक्स पेयर्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दिया था फ्रॉम 1 दिसंबर टू 30 जून के बीच में, उन्होंने क्या दिक्कतें फेस करी हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं, जिससे कि जो टैक्स पेयर्स आगे इन फ्यूचर डेट्स में इस पे एक्शन लेने वाले हैं उनको ये प्रॉब्लम्स ना आए। Then now my first question, which is related to the B2C QR code, B2C e-invoices, बेसिकली जो अल्टीमेट एम है QR कोड को स्पेसिफाई करने का B2C कैटेगरी में, वो है प्रमोशन ऑफ डिजिटलाइजेशन ऑफ द डिजिटलाइजेशन। अब अगर हम मार्केट सिनारियो को स्टडी करके देखें तो हमारे पास कई सारे मोड ऑफ पेमेंट्स होते हैं। हमारे पास कैश भी होता है, हम कैश से भी कर सकते हैं, हम UPI के थ्रू भी कर सकते हैं, हम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग, नेट बैंकिंग और कोई भी कॉम्बिनेशन अपना सकते हैं। बट अगर हम B2C ई-इनवॉइसेस के रिस्पेक्टिव में अगर बात करें, तो अगर हमने कोई भी कैश में पेमेंट करी है बिना QR कोड के, कहने का मतलब ये हुआ कि आपके इनवॉइस पे तो QR कोड मेंशन्ड है, मगर अगर आपने कैश में पेमेंट करी है तो वो QR कोड तो वैलिड होगा, बट वो अल्टीमेट मोटिव in payment of a cash does not serve the purpose of the government. Next, अगर हम बात करते हैं UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह के थ्रू अगर हम करते हैं, और हम जो पेमेंट है QR कोड के थ्रू कर रहे हैं, मतलब अगर हम QR कोड को स्कैन करके, अगर हमारा रिसिपिएंट जो है QR कोड को स्कैन करके पेमेंट अगर कर रहा है, देन अगेन दैट इनवॉइस इज द वैलिड वन। अगर रिसिपिएंट उस QR कोड को यूज करके पेमेंट अगर नहीं करता है, तब भी वो इनवॉइस तो वैलिड होगा, बिकॉज उस इनवॉइस के ऊपर जो QR कोड की डिटेल है वो क्लियरली स्पेसिफाई करती है द डिटेल ऑफ द सप्लायर एंड डिटेल ऑफ द पेइंग, और इवन उसमें क्लियरली ये मेंशन भी होता है, एक क्रॉस रेफरेंस दिया होता है कि आपने पेमेंट किससे किया है। My next intricacies is if the supplier makes available to the customer an electronic mode of payment like UPI collect and UPI intent or similar other mode of payment, where though the dynamic QR code is not displayed, but the detail of merchant as well as the transaction are displayed, how can the requirement of the QR code as per this notification be complied? कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी सप्लायर जो है कस्टमर को ऑनलाइन पेमेंट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड तो कर रहा है, मगर वो QR कोड अगर नहीं देता है, तो क्या वो जो डिटेल मेंशन्ड है मर्चेंट की, जो सप्लायर की वो जो डिटेल्स मेंशन्ड है, वो वैलिड है मेंशन? द आंसर इज दैट कि इनवॉइस के ऊपर B2C का ई-इनवॉइस जनरेट करते में आपको जो है QR कोड हैविंग अ क्रॉस रेफरेंस ऑफ द पेमेंट होना जरूरी है। अगर वो क्रॉस रेफरेंस या फिर QR कोड अगर नहीं मेंशन्ड है कंटेनिंग ऑल द डिटेल्स,
तो वो एक इनवॉइस भी वैलिड नहीं होगा। इवन आपने अगर क्रॉस रेफरेंस पेमेंट करने का एक क्रॉस रेफरेंस नहीं दिया तो भी वो इनवॉइस वैलिड नहीं माना जाएगा। My next intricacies is regarding to the advance level. Generally what had happened is कि हमें पेमेंट पहले मिल जाती है और हम हो सकता है सप्लाई बाद में कर रहे हो या फिर हम इनवॉइस बाद में रेज कर रहे हो। अब क्योंकि हमें पेमेंट पहले मिल गई तो हमारा इनवॉइस तो जनरेट हुआ नहीं। अगर इनवॉइस जनरेट नहीं हुआ तो हम कोई कंप्लाइंस नहीं कर पा रहे। तो उस केस में हम किस तरीके से इसकी कंप्लाइंस को कर सकते हैं? अगर हमारे क्योंकि अंडर जीएसटी लॉ आपके पास जब कभी भी एडवांस में पेमेंट रिसीव हो जाता है तब आपके ऊपर टैक्स पेमेंट करने की लायबिलिटी अराइज हो जाती है। इन दैट केस जो भी आपको पैसा एडवांस में रिसीव हुआ है उस टाइम पे जो है आपको उस पेमेंट का रेफरेंस अपने ई इनवॉइस में देने की जरूरत नहीं है। लेट्स से एन एग्जांपल, अगर आज मुझे जो है मेरे कस्टमर ने 10,000 रुपए दे दिए हैं, अभी इनवॉइस बना नहीं है, मैंने उसको रिसीट वाउचर पकड़ा दिया क्योंकि मैंने एडवांस रिसीव किया था। अब मैं एडवांस रिसीव करती हूँ और रिसीट वाउचर जब दिया तो गवर्नमेंट ने मुझे ये स्पेसिफिकली नहीं कहा है कि आपको रिसीट वाउचर के टाइम पे जो है ये ई इनवॉइस की कंप्लाइंसेस करनी है। देन उस केस में क्या है, वो 10,000 रुपए मैं ले लूंगी, रिसीट वाउचर दे दूंगी। बट लेट्स से आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ मैंने उसको 90,000 रुपीज की सप्लाई करी है। उस केस में जो है 80,000 रुपए मैं इनवॉइस उसको बना के दूंगी आफ्टर डिडक्शन ऑफ द एडवांस रिसीव, तो फाइनल पेमेंट 80,000 की होगी। इन दैट केस उस 80,000 रुपए पे हम उस 80,000 रुपए का क्यूआर कोड जनरेट होगा, क्रॉस पेमेंट रेफरेंस होगी और बाय वे ऑफ डिजिटलाइजेशन मोड उस 80,000 रुपए को मेरा डिसिप्लिन जो है सप्लायर को पे करेगा। So the answer is a big no. For the B2C invoice is mandatory for the prepaid invoices. Now next is the compliance of the e-commerce operator. Basically what did happen in the next scenario अगर हम लेते हैं, जनरली क्या होता है, जैसे कि हम एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एक फ्लिपकार्ट है, ऑब्वियसली फ्लिपकार्ट जो है खुद भी कुछ मटेरियल वहां पे गुड्स वगैरह सेल करता है। कुछ हम जैसे सप्लायर्स भी होते हैं जो एक फ्लिपकार्ट को एक प्लेटफॉर्म की तरह यूज करके अपने गुड्स सेल करते हैं जिससे कि हमारा बिजनेस बढ़े और हमारी जो टर्नओवर और रेवेन्यू इंक्रीज हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही कहता है कि क्या अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर ये क्यूआर कोड की फैसिलिटी दे रहा है तो क्या वो जो सप्लायर उस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को यूज करते में अपने गुड्स को सेल कर रहा है तो क्या वो उसको भी ये कंप्लाई करना चाहिए रिक्वायरमेंट या नहीं? द आंसर इज यस। B2B के ई इनवॉइस को जनरेट करते में जो क्यूआर कोड की फैसिलिटी हर एक सप्लायर के लिए, वेदर इट इज ऑफ अ ई कॉमर्स ऑपरेटर, वेदर इट इज ऑफ अ नॉर्मल सप्लायर, सबके लिए वो अलग अलग है और सबको अपनी अलग अलग अपनी कंप्लाइंसेस को समझते हुए उसको कंप्लाई करना चाहिए। अब अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर ने तो अपना जो है क्यूआर कोड की फैसिलिटी दे दी, उसके बाद लेट्स से कि अगर मैंने कुछ वहां पे गुड्स परचेज करे, सप्लायर ने इनवॉइस तो जनरेट किया मगर उस इनवॉइस के ऊपर क्यूआर कोड मेंशन नहीं किया, देन दैट इनवॉइस, दैट रजिस्टर्ड सप्लायर्स इनवॉइस इज नॉट द वैलिड इनवॉइस। बट अगर उसने ऑनलाइन पेमेंट हो रही है, स्पेसिफाई हो रही है कि जब हम गुड्स ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं ऑनलाइन पेमेंट स्पेसिफाई हो रही है और उसके बाद भी जो है क्यूआर कोड अगर स्पेसिफाई नहीं करा है, दैट इज नॉट द वैलिड इनवॉइस। बट अगर हमने सप्लायर ने प्रॉपर्ली क्यूआर कोड मेंशन किया है, प्रॉपर्ली सारे रूल 46 की डिटेल्स मेंशन्ड है, सप्लायर्स की बैंक की डिटेल मेंशन्ड है और उसको प्रॉपर्ली हम स्कैन करके चेक भी कर सकते हैं कि ये वैलिड है या नहीं है। मैं अगेन ये वाली चीज कहूंगी कि जो हम एडवांस में पेमेंट पहले आ जाता है उसके ऊपर क्यूआर कोड की फैसिलिटी को प्रोवाइड करना इज नॉट अ मैंडेटरी और इट्स नॉट अ फीजिबल वन, क्योंकि कोई भी बंदा आपको आके पहले ही सर्विसेज और इनवॉइस देने से पहले ही वो आपको पैसे दे देता है। तो जब तक इनवॉइस जनरेट नहीं होगा, जब तक क्यूआर कोड आपको प्रोवाइड करना इज नॉट अ पॉसिबल वन। Again, the next question is related to the unique identity number. पहले हम क्वेश्चन पे जाने से पहले हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि व्हाट एक्चुअली द यूनिक आइडेंटिटी नंबर। Basically, under section 25 subsection 9, government has given a facility to the United Nations organizations and international organizations to get it registered under GST law.
It is so because whatever the credit they are going to have, or whatever the foreign entities or these international organization is going to have, they can take the refund from the government, because they are ultimately being established in India for having certain social activities, or for funding for funding certain CSR activities. तो अगर हम लॉ को, अगर हम सेक्शन 294 को अगर हम देखते हैं, तो ये जो पर्सन्स होते हैं, यूनाइटेड नेशंस एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, दो रजिस्टर्ड हैं जीएसटी के अंदर, इनके पास एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर है, वो 15 डिजिट का, बट स्टिल उनको अनरजिस्टर्ड माना जाएगा। अब जब उनको अनरजिस्टर्ड माना जाएगा, तो अगेन यहाँ पे अगर ये किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन से सप्लाई ले रहे हैं, जैसे लेट्स से कि अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन एक स्टेशनरी सप्लायर से जो है ये सर्विस, अगर गुड सप्लाई ले परचेज कर रहे हैं, तब भी जो स्टेशनरी सप्लायर होगा उसको जो है क्यूआर कोड मेंशन करते हुए हैविंग अ क्रॉस रेफरेंस ऑफ द पेमेंट डिटेल्स एंड अदर डिटेल्स अपने इनवॉइस पे मेंशन करना जरूरी है। ये क्वेश्चन क्यों अराइज हुआ? ये क्वेश्चन इसलिए अराइज हुआ कि जीएसटी में जो स्पेसिफाई करा गया है कि एक रजिस्टर्ड पर्सन को जीएसटी में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, एक प्रॉपर वैलिड 15 डिजिट का कोड लेना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ द पैन। तो यूनाइटेड नेशंस एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ये कोड ले रहे हैं, ये सारी फैसिलिटीज कंप्लाई कर रहे हैं, इसलिए ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्या स्टिल उनको B2C माना जाएगा या B2B माना जाएगा। बट गवर्नमेंट हैज क्लैरिफाइड इन देयर सर्कुलर नंबर 146 की यूनिक आइडेंटिटी नंबर रखने वाले टैक्स पेयर्स को हम अनरजिस्टर्ड मानेंगे, और कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन इनको अगर कोई भी सप्लाई करता है, गुड्स या सर्विसेज देता है, तो उसको वो B2C ट्रीट करते हुए क्यूआर कोड मेंशन करेगा। नेक्स्ट इज कि हमारा जो क्यूआर कोड होता है, अगर लेट्स से इनवॉइस मैंने इशू करा, आई एम अ सप्लायर, इनवॉइस मैंने इशू करा, बट मिस्टर वाई, मैंने अपने रेसिपिएंट को बोला कि आप मेरे को पैसे मत दो, मिस्टर वाई को पैसे दे दो, तो क्या मुझे मिस्टर वाई की जो बैंक डिटेल्स हैं वो अपने इनवॉइस पे मेंशन करनी जरूरी है? द आंसर इज यस, क्योंकि अगर हम क्यूआर कोड का कॉन्सेप्ट को अगर हमने जो देखा वो ये है कि वहां पे सप्लायर की भी बैंक की डिटेल्स होनी जरूरी है, और पे के बैंक डिटेल्स एंड आईएफसी की भी डिटेल्स होनी जरूरी है। बट अगर पे मैं नहीं हूँ, मेरे अलावा कोई और पे ही है, मतलब जो पैसे कलेक्ट कर रहा है वो कोई और बंदा कलेक्ट कर रहा है, तो उस केस में जो है क्यूआर कोड, जो क्यूआर कोड के थ्रू हम जो पेमेंट कर रहे हैं उसमें जो उस पे के बैंक अकाउंट की डिटेल होनी चाहिए, और वो यूपीआई के थ्रू लिंक होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि अगर हमारा एक, अगर मैंने किसी और किसी अपने बिहाफ पे किसी और पर्सन को हमने कर दिया, so that we have studied in such cases where the payment is collected by some person authorized by supplier on or his behalf, the UPI ID of such person may be provided in the dynamic QR code instead of UPI ID of the supplier. Now my next question has arisen कि अगर मेरे बैंक अकाउंट से जिससे मैं पैसा कलेक्ट करने वाली हूँ, अगर मेरी UPI ID इंटरलिंक्ड नहीं होती है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन दैट केस, क्योंकि हम एक डिजिटलाइजेशन को प्रमोट कर रहे हैं, एंड द बेस्ट वे टू प्रमोशन ऑफ द डिजिटलाइजेशन इज थ्रू द इंडस्ट्री, इज थ्रू द बिजनेस हाउसेज, इज थ्रू द टैक्स पेयर्स। उस केस में हम जो भी सप्लायर होगा उसको प्रॉपर्ली अपनी यूपीआई आईडी को लिंक करवाना पड़ेगा फॉर दिस पर्पस। और अगर वो लिंक नहीं है, मतलब अगर उसका बैंक अकाउंट या फिर आईएफएससी कोड अगर नहीं प्रोवाइडेड हो रहा है, तो एक ऐसी यूपीआई आईडी की डिटेल्स देनी होगी जो कि उसके बैंक अकाउंट से प्रॉपर्ली लिंक्ड है। Now, in respect of the next question, the question states that in ये एक ऐसा क्वेश्चन को स्पेसिफाई किया है इन द सर्कुलर बाय द काउंसिल, इज दैट कि दिखने में तो आप देखोगे तो ये एक्सपोर्ट है, मगर एक्चुअली में एक्सपोर्ट नहीं है। एक्सपोर्ट के केस में कुछ स्पेसिफाइड करी हुई है आईजीएसटी के अंडर कंडीशंस। द कंडीशन फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज कि सप्लायर इज इन इंडिया, रेसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया। बट अगर हम एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज की बात करें तो इन 3 कंडीशंस के अलावा 2 कंडीशंस और आती हैं कि फॉरेन एक्सचेंज करेंसी में पैसा आना चाहिए, और वो दोनों पार्टी
सप्लायर और रेसिपिएंट कोई भी डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं होना चाहिए कि वो कभी होल्डिंग और सब्सिडरी हो, क्या कहते हैं, सॉरी, रिलेटेड पार्टीज हो रहे हो हैविंग अ सेम पेन। बट यहाँ जो क्वेश्चन अराइज होता है, क्योंकि एक्सपोर्ट के केस में हमें कोई इस तरीके की मैंडेटरी B2C वाली इनवॉइस नहीं करनी है, बट जो यहाँ जो क्वेश्चन मेंशन होता है, जो क्लैरिफाई करा है गवर्नमेंट ने, वो ये है कि चाहे हमारा सप्लायर इंडिया में हो, हमारा रेसिपिएंट इंडिया के बाहर हो, बट अगर प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में है तो वो एक तो पहले एक्सपोर्ट नहीं है, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में है, एक्सपोर्ट नहीं होगा, तो B2C की रिक्वायरमेंट हमें फुलफिल करनी होगी। मगर अगर वो फॉरेन करेंसी में पैसा आ रहा है और RBI अप्रूव्ड है, यहाँ पे ये ट्विस्ट दे रखा है कि अगर जो फॉरेन करेंसी में जो पैसा आ रहा है और वो अगर RBI अप्रूव्ड अमाउंट है, तो हमें B2C के QR कोड की कंप्लायंसेस को पूरा करने की जरूरत नहीं है। Whenever an invoice is issued to a recipient located outside India for a supply of services for which the place of supply is in India, I'm repeating it again, for which the place of supply is in India, as per the provision of the IGST Act, and the payment is received by the supplier in foreign currency through RBI approved medium. Such invoice may be issued without having a dynamic QR code. As such, dynamic QR code cannot be used by the recipient located outside India for making payment. अब ऐसा क्यों किया? मतलब अगर हमारा एक्सपोर्ट नहीं है, फिर भी चाहे RBI के थ्रू अप्रूव्ड मोड से भी क्यों ना आ रहा हो, तो इस चीज की कंप्लायंसेस को इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं किया गया कि अगर हम एक गवर्नमेंट का अल्टीमेट एम देखें इस चीज में ई इनवॉइसिंग लाने का, एक तो रियल टाइम डाटा, अवेलेबिलिटी ऑफ रियल टाइम डाटा ऑफ टैक्स पेयर टू द टैक्स डिपार्टमेंट होगा, और जो है प्रमोशन ऑफ डिजिटलाइजेशन। और ये जाहिर सी बात है कि अगर फॉरेन करेंसी में किसी भी RBI अप्रूव्ड मोड से पैसा अगर आएगा, तो ऑब्वियस है कि ये डायनामिक QR डिजिटलाइजेशन के थ्रू ही आएगा। सेकेंडली, जब RBI अप्रूव्ड मोड से पेमेंट आ रहा है, तो टैक्स डिपार्टमेंट के पास अपने आप ही ऑन द सेम टाइम डाटा अवेलेबल, रियल टाइम डाटा अवेलेबल हो जाएगा। इसलिए उस केसेस में जो है हमें B2C के ई इनवॉइस की कंप्लायंसेस को करना मैंडेटरी नहीं है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस ऑफ, ये बहुत ज्यादा जनरल क्वेश्चन सॉर्ट ऑफ है कि लेट्स से कि अगर हम किसी भी शॉप पे जाते हैं, मे बी ऑफ द रिलायंस फ्रेश, मे बी ऑफ द स्पेंसर, मे बी ऑफ द एनी ऑफ द स्टोर और सुपर मार्केट, हम जनरली ये चीज देखते हैं कि वहां पे काउंटर पे जब हम बिलिंग कराने जाते हैं, तो वहां पे ऑलरेडी QR कोड एक साइड में लगा हुआ होता है, एंड द सेल्समैन हैज सेड कि भाई आप पहले अपनी पूरी डिटेल्स बताओ, आप पेमेंट करो, तब मैं जाके इनवॉइस जनरेट कर पाऊंगा। उनका सिस्टम इस तरीके से होता है जिससे कि कोई एरर जनरेट ना हो। उस केस में हम किस तरीके से कंप्लायंसेस को करेंगे? अब अगर, क्योंकि वो जनरल फॉर्म में जो है QR कोड लगा होता है, तो ये जाहिर सी बात है कि हमारा जो एक रिक्वायरमेंट है क्रॉस रेफरेंस ऑफ द पेमेंट्स की, जो पेमेंट्स हम कर रहे हैं उसका क्रॉस रेफरेंस होना चाहिए उस QR कोड में, वो ये नॉन कंप्लाइंट हो रहा है, क्योंकि वो एक जनरल QR कोड है, उसको स्कैन करके मैं भी पे कर सकती हूँ, उसको स्कैन करके आप भी पे कर सकते हो, उसको स्कैन करके मिस्टर वाई भी पे कर सकते हैं। उस केस में जो है हम B2C की कंप्लायंसेस को किस तरीके से पूरा करें? इन दैट केस यहाँ पे हम सिचुएशंस को स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहली सिचुएशन जो जनरली आती है कि हम जो सुपरमार्केट में जाते हैं, QR कोड देखा, वहां से स्कैन कर दिया, देन सेल्समैन सेड कि इनवॉइस जनरेट होता नहीं है, वो हमें अमाउंट बता देता है, देन दे सेड कि भाई आप पहले पेमेंट करो तभी मैं इनवॉइस निकाल पाऊंगा। उस केस में क्या हमें कंप्लायंस करना होगा कि जो पेमेंट कस्टमर ने किया है, उसके बाद उसके पास एक पेमेंट रेफरेंस नंबर जनरेट होता है, उस नंबर का रेफरेंस हमारा इनवॉइस पर, जब सेल्समैन इनवॉइस जनरेट करे, उसका रेफरेंस जो है हमारा इनवॉइस पर मेंशन क्लियरली होना चाहिए। अगर वो सेल्स रेफरेंस नंबर लिंक का जो है इनवॉइस पे अगर अवेलेबल नहीं है, तो वो एक वैलिड इनवॉइस नहीं माना जाएगा। बट अगर उसका रेफरेंस इनवॉइस पर मेंशन्ड है, पेमेंट रेफरेंस नंबर अगर हमारा इनवॉइस पे मेंशन है, तो एक वैलिड इनवॉइस माना जाएगा। बिकॉज द अल्टीमेट कॉन्सेप्ट इज ऑफ हैविंग ए क्रॉस रेफरेंस ऑफ द पेमेंट, यानी कि ये कि अगर आज टैक्स डिपार्टमेंट आके ये देखे और आपके जो उस QR कोड को अगर स्कैन करे, तो उसको वो डिटेल मिल जाए कि इस QR कोड को स्कैन कर करके कितने लोगों ने पेमेंट करी, और जितने लोगों ने पेमेंट करी उसमें सभी लोगों का को क्या क्या इनवॉइस
को इशू किए गए और क्या डिटेल्स के साथ इशू करे गए हैं, एक्चुअली में गुड्स कोई सप्लाई हुए भी हैं या नहीं हुए हैं, ये सारी चीजें उसके थ्रू हमें पता चल जानी चाहिए. So in that case, in such cases where the invoice number is not available at the time of digital display of dynamic QR code in case of over-the-counter sale, and the invoice number in invoices are generated after receipt of payment, the unique order ID or unique sales reference, unique order ID मतलब जो हम पेमेंट कर रहे होते हैं उस टाइम पे जो हमारी आईडी निकल कर आती है, which is uniquely linked to the invoice issued for the said transaction, may be provided in the dynamic QR code for digital display. As long as the detail of such unique ID or sales reference number linkage with the invoice are available on the processing system of the merchant or supplier, and the cross reference of such payment along with the unique order ID, sales reference number are also provided on the invoice. कहने का मतलब यही हुआ कि अगर जब तक चाहे हमने पेमेंट उसकी पहले ही कर दियो, मतलब 1 मिनट पहले, इनवॉइस जनरेट होने से 1 मिनट पहले ही हमने क्यों ना पेमेंट कर दियो, बट जो वो पेमेंट करिए उसका रेफरेंस नंबर हमारे इनवॉइस पे होना जरूरी है. अच्छा, नाउ next question is related to one of the ingredient that is having a gross amount invoice value, total invoice value. हमने अभी कुछ स्लाइड्स पहले जब इंग्रेडिएंट्स पढ़े थे कि क्यूआर कोड में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उसमें वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द टोटल इनवॉइस वैल्यू. बट यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस क्लैरिफिकेशन क्रिएट हुई एनवायरमेंट में, बिजनेस सिनेरियोज में, कि क्या हम किस चीज को हम इनवॉइस वैल्यू मानेंगे. जनरली अगर हम देखें तो इनवॉइस वैल्यू क्या होता है हमारा, is the sum of the taxable supply, invoice value is the sum of the taxable amount plus the GST amount. बट यहाँ कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि हमारी टैक्सेबल वैल्यू ही कम हो जाती है, हमें कुछ डिस्काउंट मिल जाते हैं, हमारे पास ऑलरेडी कोई कूपन्स वगैरह होते हैं, वाउचर्स होते हैं, या फिर मैं ये कहूँगी हमने एडवांस में पेमेंट ले रखी है, उस केस में हमारी इनवॉइस वैल्यू चेंज हो जाती है, क्योंकि हमारी जो पेमेंट कलेक्शन अमाउंट है वो चेंज हो जाएगा. उस केस में आफ्टर डिडक्शन ऑफ द वाउचर और डिस्काउंट देने के बाद, वाउचर्स को डिडक्शन करने के बाद, या फिर जो भी हमने एडवांस रिसीव करी है उनको करने के बाद, जो वैल्यू आफ्टर इंक्लूजन ऑफ जीएसटी हमारी अराइज होती है उसको हम इनवॉइस वैल्यू मानेंगे, और वही हमारी क्यूआर कोड में स्पेसिफाई होगी, बिकॉज द रेसिपिएंट इज फाइनली गोइंग टू पे दैट अमाउंट. The detail of total invoice value along with the cross reference of the part payment, advance, adjustment done, and the remaining amount to be paid shall be properly provided on the invoice and also available to the QR code as well. I hope to the participants that they had a big understanding of their of the has been generated while having a B2C invoices as well as on the B2B invoices, and what actually the difference is between the B2B and the B2C invoices is to be generated. Thank you to all for have such a kind patience of listening of my study. Yeah, we can take up question answers right now. Sure, Sheetal. Yeah, can we? Thank you. Yeah, sure. Yeah, so if anyone has any questions, you all can write it down. I can see a couple of questions they have come. So here, how would, Nikita ji, I'm just reading the question. Yeah. So how would the manner of issuance of invoicing in section 31 affect the e-invoice? Basically, under section 31, the government has given all the contents and all the timelines that we have to raise to the e-invoice. तो e-invoice के आने से जो particular section के जो laws हैं वो change भी नहीं हुए. That gives a big strength कि वो हमको digitalization way में ये बताते हैं कि हमें क्या B2C किस तरीके से हमें invoice generate करना है और फिर कैसे करना है. Okay, so is e-invoicing required to be issued by government entity? Yeah, that is one of the most important question that has asked by one of the participants. Basically, recently what had happened is the government has given a change in a notification number 13 by 2020, which clearly specifies that the government entities and local authorities are clearly exempt from issuance of B2B e-invoice. But
such exemption is not being provided for the B2C invoices. So therefore, all the government entities, even the local authorities, even any of the public sector undertaking are all eligible for issuance of the B2C invoice. Only those 5 category of invoices are exempt, which we have taken recently in our study. Okay. And yeah, from where can we generate QR code? Okay. Basically, government has did not given any of the specific any of the platform कि आप वहां जाएं. जैसे उन्होंने B2B के केस में दे रखा है कि उन्होंने अपनी एक बल्क जनरेशन यूटिलिटी प्रोवाइड कर रखी है कि आप उस यूटिलिटी के थ्रू जो है उसको अपनी B2B का इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं. बट गवर्नमेंट ने B2C के लिए ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं दे रखी है. इसीलिए मैंने टूल्स टू जनरेट में स्पेसिफाई करा था कि हमें गवर्नमेंट के पोर्टल से कोई लिंकेज नहीं है, हमारे पास कोई भी तरीके की यूटिलिटी टूल्स वगैरह कुछ भी नहीं है. तो व्हाट कैन यू डू इज कि आपका जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, मे बी ऑफ द टैली, मे बी ऑफ द ERP, मे बी ऑफ द SAP और मे बी ऑफ द एनी ऑफ द सॉफ्टवेयर, आपको वहां उस सॉफ्टवेयर डेवलपर से इंटरेक्ट करना होगा. उनको स्पेसिफाई करने होंगे जो QR कोड के जो 6 इंग्रेडिएंट्स हैं उसके लिए. Then they will able to give you the QR code, the manner of the QR code कि आपका हर इनवॉइस पे वो QR कोड जनरेट होकर आए. ओके. ये तो एकदम गुड. So how would QR code help to tax evasion? बेसिकली ये तो बेसिक एम ही है कि QR कोड जो होते हैं, QR कोड या B2E इनवॉइसिंग जो है टैक्स इवेजन को कम करेगा. ये हमने अपनी स्टडी में भी स्टडी करा था रिसेंटली कि जो टैक्स इवेजन का जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने लगा GST में, जब हम देखने लगे कि बहुत सारे फेक इनवॉइसेस क्रिएट हो रहे हैं, एक फिक्टिशियस क्रेडिट लिया जा रहा है जो एक्चुअली में अवेलेबल नहीं होता, या फिर कह लो जो क्रेडिट लेने की जो भी कंडीशंस हैं वो अवेल उन कंडीशंस को बिना फुलफिल करे हम उनका क्रेडिट अवेल कर रहे हैं. उसी वजह से क्योंकि वहां वो जो है टैक्स इवेजन हुआ, गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम होने लगा, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिल रहा था. उस तभी जो है ई इनवॉइस को लेकर आया गया जिससे कि जो है टैक्स डिपार्टमेंट के पास रियल टाइम डाटा अवेलेबल हो जाए. और उस रियल टाइम डाटा के अवेलेबल होने से टैक्स इवेजन में बहुत ज्यादा सपोर्ट मिले. ओके. एक और क्वेश्चन है, is the e-invoice required to issue for the supply to another unit with the same PAN? अगर कोई दूसरी यूनिट हमारी सेम पैन के अंदर अगर अवेलेबल है तो ऑब्वियसली वो रजिस्टर्ड होगी. बट इन केस अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है या नहीं कराया है तो मेरा एडवाइस तो ये होगा पहले तो आप उसको रजिस्टर्ड करा लीजिए. और अगर बीन बाई कोई भी इनवॉइसेज इशू करा है देन यू हैव टू जनरेट द B2C इनवॉइस. Okay, fine. I think almost all the questions are answered. Yeah, so I would request Sonali ji to do vote of thanks. I hope, Sheetal, some of the questions are also labeled there in the chat box. Yeah. I'm just reading it. Wait. One of the question is from Anup Khaitan. Is based on what you have explained in most of the intercompanies transaction, QR code is not mandatory. That means e-invoice generation is also not necessary. Mr. Anup, I'm not saying that. I'm saying that कि अगर intercompany within a unit अगर transaction पहले the question is that कि अगर एक यूनिट से दूसरे यूनिट में having a same PAN अगर transaction हो रही है तो obviously वो B2B transaction है. उस केस में हमें with the help of the invoice reference portal हमें IRN generate करते हुए B2B का e-invoice generate करना पड़ेगा. बट अगर किसी भी एक यूनिट ने अगर रजिस्ट्रेशन अपना नहीं लिया है, नहीं ले पाई है या नहीं पता था कि उसको लेना चाहिए था क्योंकि उसकी टर्नओवर कम थी और उन्होंने कोई भी इनवॉइस इशू किया है, आई एम जस्ट सेइंग कि अगर 1 जुलाई के बाद कुछ ऐसा अगर हो रहा होता है तो वो बेटर है पहले तो इसकी कंप्लायंस पूरी कर लें और साइमल्टेनियसली अपना रजिस्ट्रेशन के लिए भी अप्लाई करें. यहाँ पे मैंने ये नहीं कहा कि QR कोड मैंडेटरी नहीं होगा. Okay. So now I think all the questions are answered. Yes, I think we've covered almost all the questions. So can I request Sonali ji to do vote of thanks? You are unmuted. You're muted. Can you unmute yourself? Thank you very much, Sheetal. Am I audible? Yes, you're audible. Thank you very much.
Honorable Shrimati Vinita Sharma, Deputy Commissioner, State Tax, GST, respected CMA Anirudh Gupta ji, media persons, and all the participants. As the CEO of Profound Mentors, an organization created with the vision to build Profound Bharat through mentoring the inner strength of every individual, I extend a very hearty vote of thanks to the Honorable Chief Guest, Srimati Vinita Sharma ji, who blessed us with her presence and took out valuable time from her busy schedule. Thank you very much, ma'am, for your time. I must mention my deep sense of appreciation to CA Nikita Agrawal. Nitika, you have really done a very appreciable work by covering the topic e-invoice in detail. This topic is very crucial to handle in day-to-day life, and mistakes and misunderstandings definitely happen. But you took the basics and other things very well by explaining who should file the e-province, how is e-invoice applicable, penalty is too high because of this session, and convenience will be easily applied. You even Ma'am, can you just unmute yourself? Yeah. Am I done? Yeah, yes. You can continue, ma'am. Okay. Thank you, Nikita, for covering this topic of e-invoicing in detail. This topic is very crucial to handle in day-to-day life, and as the mistakes and misunderstanding is definitely it happens. But you took the basics and advance of invoicing, like who should file it, how is e-invoicing applicable, penalty into high, and because of the session, compliance will be easily applied. You even explained what will happen if invoice is not generated. Every topic you have covered very well. Thank you, Nikita, for giving us all this in detail. I also wish to express my gratitude to our visionary behind the Profound Bharat, CMA, Mr. Anirudh Gupta ji, for providing guidance and encouragement to the whole team at every step. Thank you very much, sir. A special thanks to CA Sheetal Sethi for organizing this event and working so hard to make it successful. Further, I extend my thanks to Ms. Jaya and Mr. Mohsin, heads of our creative team and technical team. Without their help at the background, we won't have done it so technically very well and creatively. Thank you, Jaya and Mohsin ji. Last but not the least, most important, the participants, for making this event successful with your contribution. Looking forward to you all in the future as well, events as well. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you so much. Anirudh ji, is there anything else that you would want to? No, not at all. That was already done with. I, really thank everybody, especially the organizers, Shetty ma'am, Sonali ma'am, Nikita ma'am, and of course, the guest of honor of the session, Vinita ma'am, for their precious time. And all the learners will be provided the e-certificate. Please, fill up the, Google form. I request Sheetal ma'am to please, copy paste the Google form in the chat box so that all those who could not register earlier, they can register themselves. Okay. I will just do that. Yes. Okay. Thank you. Thank you, everybody. We'll be coming with the next webinar soon. Thank you, Anirudh. Thank you very much. Thank you all. I've pasted the link. So if at all anybody doesn't have it, you can just access it from here.